Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we have Aditya Parikh Bhaiya with us, who is currently in 4th year as well as an intern at Josh Talks. And in this video he will be telling us everything that he did in his first year, second year, third year that helped him get this opportunity. So let's get started. So how are you, Aditya Bhaiya? Hello guys. So I'm fine. Just have exams in few days. Semester is going to end. Then college is over for me. So nothing else going on. Other than that, yeah. Just some basics about me. So I'm Aditya Parikh. I am in fourth year VIT Vellore CAC branch, and I am from Mumbai. So yeah, like your batch had this amazing experience of studying 2 years online and 2 years offline. So how was the experience? Was it different? And how was your experience? Yeah, so talking about the experience, so I will just say like first year around second semester is when COVID started. So that time we all went home. We got a mail that you have a holidays for 21 days. So we all were very happy that let's go home. And so like for those 20 days we were just watching Netflix and doing time pass. But then those 20 days became 2 months, then 3 months, then full 1 year. So that was little sad because we thought like we will go back to college again, but it got extended. Then third wave, second wave, everything came. But yeah, luckily like college चालू हो गई थी online, so that was a new experience. Like Microsoft Teams में थे हम लोग, like class होती थी. तो तुम लोग का भी तो तेरा स्टार्टिंग Microsoft Teams पे हुआ था ना? Exactly, first semester. हाँ, तो हम लोग का सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर चालू हो गया था, वो हुआ था टीम्स पे चालू हुआ था. एंड तो थोड़ा अलग सा था, लाइक जैसे सुबह उठ के टीम्स ऑन कर रहे हैं, मतलब थोड़ा अलग था. बट सीख गए थे, 1-2 हफ्ते में आदत पड़ गई थी. फिर बट वही है कि ऑनलाइन क्लासेस में इतना मज़ा तो नहीं आता है, लाइक नए नए लोगों से नहीं मिल पाते आप, तो वो बात एक मिस हो जाती है. एंड जो एक्स्ट्रा करिकुलर होते हैं वो सब नहीं हो पाते, जैसे कि हॉस्टल में रहने में होता है ना कि लाइक यू मीट न्यू पीपल एंड साथ में पढ़ते हो, या फिर लाइब्रेरी जा सकते हो, या फिर ग्राउंड पे जाके खेल सकते हो. एंड मतलब बहुत कुछ होता है जो ऑनलाइन में नहीं हो पाता है. बट फिर भी लाइक क्लब्स वब्स थे जिसमें मैं था, तो उनके थ्रू थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर होता था, या ऑनलाइन इवेंट्स होते थे बहुत सारे, लाइक वर्कशॉप्स हो गए, या फिर मतलब बहुत कुछ होता था ऑनलाइन इवेंट्स, मतलब जूम पे होते थे. बट फिर भी और तो कुछ नहीं कर सकते मतलब. How did you got this internship? So I will just explain like what I do. So I am a product manager at Josh Talks. So I have been interning there from October last year, 2021 October, till like now. Also I'm doing internship, but I'm on a break because I'm in college. But so like I will tell you like how I started. So I did not know what is a PM, like what is a product manager, or about Joe Stocks. तो like first year में जब मैं आया था, तो I was doing a lot of coding with my friend, like Python, C++ में कंप्यूटर प्रोग्राम चालू किया था, because मुझे पता था कि वही कर सकते हैं. मतलब I thought कि it was interesting also. But then धीरे धीरे मैंने और चीज़ें डिस्कवर की, जैसे फिर वेब डेवलपमेंट थोड़ा बहुत किया, फिर स्टॉक्स ट्रेडिंग थोड़ा बहुत, मतलब फाइनेंस में ऐसे देखा था. बहुत चीज़ें मैं एक्सप्लोर किया, लाइक कोर्सेरा वोसेरा के कोर्सेज किए थे 1-2. एंड फिर मैंने फर्स्ट ईयर में क्लब ज्वाइन कर लिया था, एक ई सेल नाम है उसका, हर कॉलेज में होता है. तो वीआईटी में एक लाइक अच्छा क्लब है, मुझे स्टार्टअप्स में इंटरेस्ट था पहले से ही. तो वो एक अच्छा पार्ट था फर्स्ट ईयर का, कि जो मुझे क्लब में जाना था वो क्लब में मेरा लाइक सिलेक्शन हो गया था. तो वो था फर्स्ट ईयर. तो ऐसे ही गया, लाइक थोड़ा बहुत टेक का, कोडिंग का. एंड मतलब फर्स्ट में तो सीखना होता है ना कि कॉलेज में कैसे रहते हैं, हॉस्टल हॉस्टल, तो इतना ही था. एंड फिर तो लॉकडाउन हो गया. तो फर्स्ट ईयर में बट मैंने क्या किया, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, वो मेरे ख्याल से अच्छी बात है. लाइक फाइनेंस हो गया, या फिर स्टॉक मार्केट, या फिर कोडिंग, वेब डेवलपमेंट, थोड़ा एम भी देखा था मैंने. एंड रोएन जी का एक कोर्स है कोर्सेरा पे, वो मैंने किया था. हाँ हाँ, मतलब ऐसे ही बहुत सारे चीज़ें किए थे, मतलब कुछ भी बहुत डीप में नहीं किया था. बट हाँ, मतलब डिज़ाइन में थोड़ा चालू किया था तभी करना, लाइक क्लब में तो थोड़े दोस्त करते थे डिज़ाइन फोटोशॉप वगैरह पे, तो मैंने देखा था. एंड मैं ड्राइंग करता था पहले, तो डिज़ाइन में थोड़ा इंटरेस्ट आया मुझे. तो सेकेंड ईयर आया तब मैंने थोड़ा डिज़ाइन पे फोकस किया, फिग्मा विग्मा सीख लिया मैंने. एंड मतलब कुछ लोग थे मेरे दोस्त जो पहले फिग्मा करते थे, तो उनसे बात बात किया. तो फिर उनने थोड़े बोला यूट्यूब पे रिसोर्सेज हैं, खुद भी सर्च कर सकते हो गूगल पे, सब कुछ तो यूट्यूब पे है ही, मतलब सर्च करके. तो फिर फिग्मा सीख लिया मैंने. एंड मतलब एक चीज़ अच्छी मैंने क्या की कि मैंने जैसे ही सीखा, और मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली, मतलब डिज़ाइन की.
तो उसके लिए मैंने थोड़े बेसिक प्रोजेक्ट्स बना रखे थे, प्रोजेक्ट्स नहीं थे मतलब लाइक डिज़ाइंस ही थे बहुत बेसिक से, लाइक एक कोई म्यूज़िक ऐप हो गया, उसका मैंने बस यूआई बना दिया था। तो उसके 3-4 ऐसे बनाए थे मैंने यूआई, एंड मैंने एक इंस्टा पे पोस्ट वोस्ट करता था, लिंक्डइन में डालता था कि आई एम लर्निंग दिस ऐसे करके 100 डेज ऑफ यूआई यूएक्स ऐसे कुछ तो होता है। मतलब 100 डेज तो नहीं किया मैंने, बट स्टार्टिंग में मतलब 15-20 दिन मैंने अच्छे से किया, बहुत फोकस से हर दिन। एंड मेरे पास थोड़े चीज़ें हो गए प्रोजेक्ट्स, जिससे कि मुझे एक स्टार्टअप में इंटर्नशिप मिल गई। तो डॉट फाइल नाम था उस स्टार्टअप का। सो इट वाज incubated at IIM Kashipur. So that startup was there, and the alumni of IIM Kashipur was the co-founders. They were the co-founder of the startup. It was a very early stage company. They had not built a final product, but they were going to build. So for that, they needed a designer. So what I did was, I was like, it was my first time working on something real. So I just made their website landing page, and it was first time working with developer, because I was a designer, there was a developer. He was also in college, but he was in 4th year. I was in first year. Like second year, first year के बीच का time है. तो तब मैं like I was to design the website, and I showed the co-founder. He liked it and made some changes, and then developer से बात किया, he coded वगैरह, website बनाया था. एंड फिर आई रोट एन आर्टिकल ऑल्सो ऑन दैट, सो दैट लाइक पोर्टफोलियो में ऐड कर दिया मैंने उस कंपनी का जो वेबसाइट बनाया था. तो धीरे धीरे ऐसे बिल्ड हुआ. देन फिर यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्टअप में प्रॉब्लम्स हो गए, लाइक वॉट एवर दे डिड नॉट हैव लॉट ऑफ फंड्स, एंड जो को फाउंडर थे दे गॉट अ जॉब समवेयर एल्स, जो भी है. सो दिस कंपनी गॉट शट डाउन आफ्टर सम टाइम. But it was okay. I got some experience also, and I had a project also in company. It was a registered company, and this was also unpaid internship. But when they closed the company, that founder, he paid me something because he was closing the company, and he explained, like I talked with him, and whatever. So that internship got over like that. And उसके बाद again I was focused into design, like I took some more courses on design, UI UX पे focus आ गया था. But then at this was like second year almost होने ही वाला था, second year पूरा. एंड तो तभी मैंने बहुत फोकस किया डिज़ाइन, मतलब प्रोडक्ट डिज़ाइन सीखा. तभी प्रोडक्ट डिज़ाइन के कोर्सेज बहुत सारे किए यूट्यूब पे, लाइक बहुत सारे रिसोर्सेज हैं. आई गेस मैं वो भेज दूंगा अगर चीज़ को चाहिए तो. रिसोर्सेज डिज़ाइन मैंने सीखे, एंड आई स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन कि मैंने ये सीखा. देन आई रोट सम आर्टिकल्स, एंड ये टाइम पे आई न्यू डिज़ाइन गुड इनफ, एंड आई हैड सम फ्रेंड्स हु न्यू कोडिंग एंड डेवलपमेंट. सो आई पार्टनर्ड विद देम एंड वेंट टू सम हैकाथॉन्स. Like which hackathons? Like designing hackathons and Okay, so mostly hackathons require you to build a product. Well, like development, it requires. I did not know development very in depth, but I had some friends who were learning web development like front end, back end, something like that. And I was going to be a designer. So like in a hackathon team, you need like 3-4 people. Like one has to be designer and presentation and the UI UX of the website, or how to pitch the project idea, why it is a unique idea that one person has to do. Then front end is there, back end is there, if mobile app is required, so web or something ML is required. So like these are the people you need. Then you need to make a team, which is like a mini startup, you can say. You need like a lot of things for a hackathon team. And if everyone is doing their job and the product is built in, like not a product, like a project, you can say, but it has to be done in like 2 to 3 days, which is like the main part of hackathon. And then you have to present it very well. That is the main thing I think for hackathon. And yeah, so I won some hackathons. I'll tell you in detail. So first hackathon attended was on campus only. We did not pass the first round only, but it was like a very good experience because it was in Anna Audi in VIT, which is like a very big auditorium. 1,400 people can come. So that was very fun experience. Like it was the time I fall in love with hackathon, because you can see people, they are sitting. One team is sitting, second team is sitting. They are discussing, brainstorming, and I like that very much. Like you have to build something in 3 days, from idea to product, final product. So that is there. And so first hackathon was on campus only, but we did not win it. It was like first hackathon, but yeah, so but we did not give up. Like next hackathon we went again. We were a little demotivated after losing, because we thought like our idea was very good, but judges were not listening to us only. But next time we went, like it was an online hackathon this time, because lockdown started. So this was a big hackathon. It was called Ivy Hacks. So I participated with my friend. He knew web development, I knew design. So we came up with an idea.
We designed the prototype, the mobile app, and the website design. Then he coded the website. Mobile app we did not code. So IVX is like a very big hackathon. All the Ivy League colleges are there, and so they also like we submitted a project. We passed the first round, I think. Submitted the video and the PPT on time. It was like a very. I did not sleep at night because it was very big project. Like we made a whole app and a website, and I was also learning to design. So yeah, matlab it was very fun experience. But in the end, like it was very fun. We did not win, but we got some like swag. Like they sent us masks, one T-shirt also I got, and like two shirts I got, and a lot of things, sticker, everything. So that was also fun because like you get something for free, not free, but it was like a for participation. A lot of people you can see on campus, they are wearing Ivy Hacks 2020 shirts. So I also have that. That is fun to collect swags. So after like you get some swags, you get addicted to going to hackathons. So back to back to back every weekend, me and my friend we were participating in hackathons. We wanted to win prize. We wanted to win stickers. Every like anything we wanted to win because it was fun to get things for free. So after Ivy hack, there is like one big VIT hack was also there. In VIT hack was the first hack we won. We used like something similar idea to Ivy hacks, but we made more modification. We coded the app also. We improved the website, improved the idea, and VIT hack. Me and my like four friends were there total. We went to VIT hack and won some prize in the fintech category. Our idea was fintech. So like this also helped me in getting internship at Joe Stocks because this project that I used, no, I wrote an article on it. You can check it on Medium. The project is called GG, which is like give and get for exchanging things between students on campus. It was a real world idea, and we presented it very well. Design was also there, coding was also there, and we were solving like a real problem. We were solving. We thought that so yeah, in VIT Act we won second prize, I think, in fintech category. And then after that, all the clubs, all the tech clubs, they are having hackathons. So CSI was having one hackathon in which we build something related to procurement. I was a designer there. I had my 2 3 friends who were developing, and like those who also got their help because they also put the projects in their resume. So that's why hackathon is very helpful for anybody. You're a designer, developer, or anyone in college. It's fun and you are building something, learning something, and you can add projects to a resume. And if you win, that also you can add to your resume. So I have like 5 6 hackathon wins. Most of them are VIT hackathons. Some are outside VIT hackathon. Some are from College of Delhi, Delhi colleges. Some IEEE hackathon. Some CSI hackathon. So like a lot of hackathons are there. I'm not going to name one, but you can just start with any hackathon you want and just start building things. That is the main advice. But once you start winning, that is time you get addicted to going more hackathons. But yeah, but you don't have to stop at hackathons. Like use those projects you made in hackathon, put them on your resume, and then apply to startups so that you can get internships. That is what I did. I used those projects that I had. Like I had by this time I had very good 3 good projects I had because of hackathons, and so I used that projects to get another internship at a startup which was started by ECEL Senior only, which recently got funded like $2.5 million they got funded, which is like a very big deal. Then after this, it is like that idea was in crypto. It was related to DAOs. If you are interested in the Web3, you might know. Otherwise, you can just Google Samudaya.xyz. So that was one startup that I interned. So I also added the work there in my resume, and then I applied. At that time, like I was before joining Samudaya, I had discovered what is product management. So product management, I was not aware in second year, but after doing designing, I learned about PM because designer have to work with PM, and PM also required to work with designer. So at that time, I did a course called Insurjo 1.0. Insurjo 2.0 is like first cohort based course. It was on product management. A lot of people who are breaking into product management, they do that course, which is free of cost. There are some paid courses also, like PM School is there, where you can learn about product management, or Insurjo. Like there are a lot of things you can just search on Google. Product management cohort courses. There are a lot of courses.
So I did one course. I had projects. I had internship experience. Then I applied to Joe Stocks, and so I sent my resume through a friend. Like he got like a application link he had. So I filled the Google form, uploaded the resume, and I got a mail from HR that you have this task you have to do in 5 days. Yeah, this was like a very big task. Like you have to make a document, you have to design, and you have to present your ideas. So that I made in like 3 or 4 days, which like this was a very big task. But I had written all the articles I had written. No, it was something like that. Like you have to convert your project into a document. Like what is the idea? Like why are you building this? Or what are the metrics to look at? Metrics is like let's suppose you are building a login page. So how many people log in, or how many people don't log in? Metrics you have to measure. Design so obviously is there, and competitor analysis also you can do. Like what are the other companies are doing, and why this idea is unique. A lot of things you can add in that document. So, but yeah, UI UX helped me in PM because I made that task in 4 or 5 days, and then I mailed to the HR. They liked the task, so I got an interview. Like after 3 interviews, they told that I am selected. So those interviews like were very detailed. They were asking me some questions regarding problem solving, my projects, internship designs, like that I had put on the website. My like I had also made a website by then. You can check it out, adityaparik.in, where I uploaded my resume, about me, and all the work experience I had in like clubs, VIT, and hackathon prizes, and like everything I had done. I put in 2.5 years. I had put 2.5 years work. I put on the website. So like around October के पहले मतलब I got the mail कि you are selected. So I was very happy, but it was like going to Bangalore, and like I had to convince my parents a lot कि please let me go to Bangalore. But finally they told like I convinced them to allow me to go to Bangalore. Uh, so I went there, and on October 2nd, first I went to Bangalore, and like I love startups very much, and I have been reading and watching a lot of YouTube videos and about startups. And so if you say startups, like Bangalore comes to mind because a lot of startups are started in Bangalore, like tech startups. So I am interested in tech startups. So Bangalore is like a city which I wanted to always go. So that was like good experience because when I landed in Bangalore, Kormangla is where the office was, which is like a very popular area in Bangalore. Like I saw offices of Zomato, Swiggy, a lot of other like Cred. So these companies are like very good startups. एंड आई लाइक मुझे भी स्टार्टअप करना है, तो मुझे मज़ा आ रहा है बैंगलोर जाके. एंड मतलब वहाँ पे गया मैं. स्टार्टिंग में तो लाइक थोड़ा नया नया था बिकॉज लाइक नए सिटी में जाते हो तो आपको ऐसा अजीब सा लगता है थोड़ा कि कहाँ पे आ गए, किसी को जानते नहीं है. बट धीरे धीरे लाइक वहाँ पे दोस्त बन गए. ऑफिस में बहुत सारे जो इंटर्न्स थे बाकी, वो भी दोस्त बन गए. एंड एक पीजी में रहने के लिए लेना था. थोड़े दिन तो होटल में रुका था स्टार्टिंग में. लाइक प्लेन वेन का टिकट था, वो सब कंपनी नहीं किया था. एंड देन आफ्टर गोइंग टू बैंगलोर, तो रहने के लिए थोड़े दिन का था होटल में. बट देन आफ्टर दैट पीजी ढूंढना था मुझे रहने के लिए. तो बट लकीली थोड़े इंटर्न्स पहले से ही थे. लाइक दे वर लाइक 10-15 days बिफोर मी दे हैड जॉइंड. So they had already found a place to stay in Bangalore. So I just stayed in the same PG in Kormangla. It was near to office, which is one of the most important things. Like walking distance में था, 500 meters 600 meters ही था. तो सुबह मतलब जाने में आसानी होती थी ऑफिस. एंड बैंगलोर नया नया था तो पास होता तो अच्छा रहता है. तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो मतलब आई गेस मैं इस पे आर्टिकल लिखा, इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस में मैं लिख रहा हूँ आर्टिकल एक बड़ा सा. बट फिर भी लाइक बेसिक में बता देता हूँ मैं. बेसिक में क्या होगी, लाइक स्टार्टिंग 2-3 महीने इट वॉज लाइक वेरी न्यू टू मी बिकॉज फर्स्ट टाइम वर्किंग एज अ PM in a big in a company in office. Like it was very intimidating because it was first time working in any office. मतलब any office में like you see people like बड़े बड़े लोग, मतलब ऐसे they are doing their full time job and you are coming from third year into office. तो थोड़ा ऐसा लगता है स्टार्टिंग में कि कहाँ पे आ गए यार ऑफिस में, ऐसे कैसे काम करेंगे, अभी तो बच्चा सही वैसा लगता है मतलब. बट फिर धीरे धीरे लाइक व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. एंड देन यू स्टार्ट टॉकिंग विद अदर पीपल, तो लाइक दोस्त बन जाते हैं. फिर काम करने में भी मज़ा आने लगता है बिकॉज लाइक मतलब जो कंपनी है वहाँ पे लोग भी अच्छे हैं. एंड ये बैंगलोर भी अच्छा है. एंड जो प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो आप, जो ऐप है लोगों की हेल्प कर रहा है, वो यू टॉक टू यूजर्स. एंड जो आप काम कर रहे हो वो लाइक वैल्यूबल है लोगों के लिए.
किसी की लाइफ चेंज हो रही है। तो वो यार जो स्किल्स के बारे में बताता हूँ मैं। तो जो स्किल्स का ऐप इज लाइक इंग्लिश टीचिंग ऐप है। लाइक लेट्स सपोज यू नो मराठी, यू नो तमिल, यू नो तेलुगु, फ्रॉम 7 to 8 इंडियन लैंग्वेजेस से। हिंदी से भी है, हिंदी इज वन ऑफ द पॉपुलर कोर्सेज बिकॉज लॉट ऑफ पीपल स्पीक हिंदी। सो हिंदी से इंग्लिश सिखाते हैं, तमिल से इंग्लिश सिखाते हैं। तो बेसिक आइडिया वही है कि इट विल हेल्प यू लर्न इंग्लिश। एंड देयर इज वन मोर न्यू फीचर इज देयर, लाइक यू कैन मीट न्यू पीपल एंड लर्न न्यू थिंग्स। वो कैसे होता है कि मतलब यू कैन टॉक टू पीपल हु आर लर्निंग इंग्लिश ऑन द ऐप। सो लेट्स सपोज हम दोनों इंग्लिश सीख रहे हैं ऐप पे, आई विल क्लिक ऑन अ बटन एंड हमारा कॉल कनेक्ट हो जाएगा। देन वी कैन इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ कि हेलो आई एम आदित्य, आई एम लर्निंग इंग्लिश। यू कैन ऑल्सो से हेलो आई एम फ्रॉम, लाइक वॉट एवर यू वांट टू से इन इंग्लिश, सो दैट यू गेट एन एनवायरमेंट टू टॉक इन इंग्लिश। एंड उसमें कोर्सेज भी है बहुत सारे, एंड एक्सरसाइज है, क्विजेज है, वो सब लाइक अभी डिटेल की जरूरत नहीं है। बट हाँ, लाइक इट इज़ अ वेरी गुड कोर्स। एंड व्हेन आई टॉक टू यूजर्स ना, तो दे टोल्ड कि यार आपका ऐप बहुत अच्छा है, आप लोगों ने मुझे इंग्लिश सिखा दी। किसी किसी को जॉब मिल जाती है इंग्लिश सीख के, एंड कोई गांव से रहता है तो मतलब उनको हेल्प हो जाती है कि इंग्लिश सीखे। एंड कभी कभी कुछ लोगों के लिए एक बड़ी बात होती है इंग्लिश सीख जाना, मतलब दैट So इज basically, like it's empowering people. हाँ, मतलब लाइक इट्स वेरी वेरी चीप कोर्स एंड फॉर एनीबडी टू एक्सेस, सो दैट दे कैन लर्न इंग्लिश। एंड सो दैट लाइक इंग्लिश इज नॉट अ बैरियर टू डू एनीथिंग। लाइक यू कांट बी लाइक मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मेरे को इंटरव्यू में निकाल दिया, मतलब वैसा नहीं होना चाहिए। So like you can see the app, more about app on Play Store. Josh Skills app नाम है उसका। You can learn English and other courses are also there. तो बट वो इतना ही है। बट लाइक मेन वो था कि लाइक आई वाज वेरी मोटिवेटेड कि लोगों की लाइफ चेंज हो रही है वगैरह वगैरह। एंड आई वाज वर्किंग ऑन समथिंग दैट पीपल यूज ऑन अ डेली बेसिस। लाइक लॉट ऑफ पीपल दे यूज द ऐप ऑन डेली बेसिस। लाइक हर दिन आते हैं वो लोग ऐप पे इंग्लिश सीखते हैं, लोगों से बात करते हैं, न्यू कोई लेसन करता है नया, या फिर कोई वोकैबुलरी सीखता है। लॉट ऑफ थिंग्स हैपन ऑन द ऐप। सो लाइक वो चीज़ों पे काम करने में मज़ा आया मुझे। लाइक फीचर्स नए नए बनाए, फीचर्स मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया ऐप में। तो लाइक प्रोडक्ट मैनेजमेंट में वही सब रहता है। And एक चीज like what is the difference between the role of UI UX designer और product designer? तो लाइक मैं बताता हूँ, लाइक प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, UI UX, मतलब ये सब ऐसे बहुत वेग चीज़ें हैं, लगता होगा बहुत लोग। बट लाइक यू कैन जस्ट सर्च यूट्यूब, सीखने के लिए आपको चाहिए तो लाइक प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डिज़ाइन और UI UX डिज़ाइन, ऐसे बहुत चीज़ें होती हैं। तो मतलब पहले मैंने चालू किया था डिज़ाइनिंग से, तो उसमें बता दो पहले डिज़ाइन के बारे में। तो UI UX क्या होता है कि यूज़र, UI मतलब कि यूज़र इंटरफेस होता है। तो यूज़र इंटरफेस इज लाइक जैसे कि आप यूज़ करते हो इंस्टाग्राम या यूट्यूब, तो उसमें जो बटन्स होते हैं या फिर कहाँ पे क्या टेक्स्ट लिखा होता है, तो ये हो गया आपका UI। बट डिज़ाइन मतलब कि कलर क्या होगा, उसका क्या होगा, शेप क्या होगा बटन का, वो सब मतलब बोल सकते हो UI है। लाइक दिखने में अच्छा होना चाहिए वगैरह वगैरह। एंड UX मतलब कि यूज़र एक्सपीरियंस होता है। तो यूज़र का एक्सपीरियंस कैसा होता है, जैसे कि जैसे आपने खोला ऐप तो वो नीचे से एनिमेशन आया, या फिर आपने क्लिक किया तो फ़ोन वाइब्रेट होता है, या फिर आपने स्क्रॉल किया तो आवाज़ आती है। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती है जिससे आपका एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है। या फिर मतलब ऐसा कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है मेरे मेरे अकॉर्डिंग UI UX डिज़ाइनर में एंड प्रोडक्ट डिज़ाइनर में। बट प्रोडक्ट डिज़ाइनर थोड़ा एक्स्ट्रा काम करता है मेरे ख्याल से। प्रोडक्ट डिज़ाइनर हैज़ टू थिंक अबाउट अ प्रोडक्ट ऑल्सो। तो प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे कि वॉट एवर थिंग यू आर वर्किंग ऑन, लेट्स सपोज कोई आपका ऐप है जो कि लोगों को इंग्लिश सिखाता है, ठीक है। तो वो ऐप में प्रोडक्ट डिज़ाइनर क्या करेगा कि से वो लोगों से बात करेगा, टॉक टू लाइक यूजर्स, एक्चुअल यूजर्स हु आर यूजिंग इट, एंड देन दे विल डिज़ाइन, like they will talk with the PM. So PM will be like solving a problem. They will have a metric. So metric is like a number they have to increase. Let's suppose you want to increase uh, the people who call daily. Like there is a feature of calling, ठीक है। तो आपको लोगों को हर दिन कॉल करवाना है, ठीक है। तो वो PM का काम है। For PM will make a feature for that, or like he will have to solve a problem by doing anything. So he can build a feature, and to build a feature you need a designer and a developer and analyst भी चाहिए होता है कभी कभी। बट एनालिस्ट की हमेशा ज़रूरत नहीं होती है, लाइक प्रोडक्ट एनालिस्ट भी होते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था हैकाथॉन टीम में व्हाट आर पीपल यू नीड, तो वैसे एक फीचर टीम होता है। लेट्स सपोज यू आर बिल्डिंग अ प्रोडक्ट, तो आपको क्या क्या चाहिए, PM चाहिए होगा। जो PM लाइक ही विल लाइक अ पर्सन हु विल लाइक अ लीडर ऑफ द टीम, बट ही वोंट बी लाइक द पर्सन हु डिसाइड्स द फाइनल। ही विल बी कंट्रोलिंग द एवरीथिंग, लाइक कि क्या बनाना है, क्यों बनाना है। तो लाइक बेसिक बताता हूँ मैं क्या, लाइक लेट्स सपोज यू आर बिल्डिंग अ फीचर, so it is like what you are building, why you are building and how you are building. So what and why में PM का काम बहुत होता है, PM और डिज़ाइनर का। So like क्या बनाए, क्यों बनाए, like क्यों बनाए is बहुत very difficult question कि why should we make anything, like that is very difficult question to answer. Like some answers to that can be like people want this feature,
this is very in demand, or competitors are doing this, and this fits very well with our product. Let's suppose अगर आप Instagram stories का feature हो, and you see a problem कि people are deleting the stories to tag people again, है ना, देखा होगा तूने, तो वो बहुत problem हो जाती है. But now Instagram has made a new feature that you can tag people after posting a story. तो वो ये बहुत अच्छा feature है. And why did they build this feature? Like what is the need? Because there was a problem which someone identified. प्रॉब्लम क्या था कि यू हैव टू डिलीट द स्टोरी टू टैग ना. तो किसी ने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम. बेसिकली लाइक एनालिसिस्ट का काम होता है ये नहीं, ये पीएम का काम ही होता है. और एनालिस्ट का काम क्या होता है कि डेटा देखना. डेटा देखना मतलब कि जैसे कि यू विल सी हाउ मेनी पीपल आर डिलीटिंग अ स्टोरी. लेट्स सपोज यू सी कि 45% ऑफ पीपल आर डिलीटिंग अ स्टोरी, देन इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम टू सॉल्व. बट अगर ओनली 0.5% पीपल आर डिलीटिंग अ स्टोरी, देन नॉट इनफ पीपल फेस द प्रॉब्लम, देन यू डोंट नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम नाउ, कैन सॉल्व अ बिगर प्रॉब्लम. सो एनालिस्ट का काम बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्ट एनालिस्ट होते हैं. So their work is to see data, like there are a lot of data is stored from an app. As you can see कि like what a person is doing online, कि वो कहाँ पे click कर रहा है, and when he is opening the app, what notifications he is getting. Lot of things is there, like everything you do on the app is stored in every app. So you get an idea कि user क्या कर रहा है. So the data is there, lot of data is there. So you have to get insights from the data. So इसमें PM and analyst साथ में काम करते हैं. So जो insight आता है, जैसे कि let's suppose you get an insight कि 50% people are deleting their story to tag people again. That is a very big data, ठीक है. This is one of the important thing, and इसमें बहुत चीज़ें होती है, like time होता है, area होता है. एंड एरिया मतलब कि लाइक सपोज इंडिया के लोग कर रहे हैं, दिल्ली के लोग कर रहे हैं, या फिर यूएस के लोग कर रहे हैं, या फिर एज ग्रुप वाइज हो सकता है कि लाइक 15 ईयर्स के लोग कर रहे हैं, या फिर 20 ईयर्स के लोग कर रहे हैं, या फिर ओल्ड लोग कर रहे हैं. ये अब 35 45 पता नहीं, वो डिपेंड करता है कि क्या चीज़ है. तो एनालिस्ट का काम होता है डेटा देखना बहुत सारा, एंड इनसाइट्स निकालना, उससे लाइक अच्छे से प्रेजेंट करना डेटा से, ग्राफ आप बना के, या फिर पाई चार्ट, जो भी होता है, मतलब बहुत चीज़ें होते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं वो लोग. तो एनालिस्ट हो गया. एंड पीएम का काम भी रहता है वो उसको समझना रिपोर्ट्स को, एंड ये रिपोर्ट्स का मतलब क्या है. जैसे कि स्टैटिस्टिक्स की चीज़ें होता है बहुत सारे कि मीडियन नंबर ऑफ कॉल्स इतना है, या फिर एवरेज कॉल ड्यूरेशन इतना है, या फिर एवरेज टाइम स्पेंड ऑन द ऐप इतना है. तो वो सब चीज़ें होते हैं, पीएम और एनालिस्ट साथ में काम करते हैं उस पर. एंड वंस यू गेट द डेटा, देन विद डेटा यू कैन गेट टू नो कि वाई आर बिल्डिंग समथिंग, शुड वी बिल्ड समथिंग, लाइक ये फीचर बनाना चाहिए क्या, ये सब चीज़ें हो गई. लाइक वाई एंड वॉट टू बिल्ड में डिज़ाइनर का काम आता है. जैसे कि ना यू नो द प्रॉब्लम, ठीक है. You know the problem is कि people are deleting their stories, lot of people are deleting their story, ठीक है. Now the problem you have to solve it. How will you solve it? So that time designer and PM can work together. So designer will be like, let's make a like there is a menu button here. You can just add more features. Like you can add a option here to add mentions or delete. ऐसा होता है ना, वहाँ पे options आ जाते हैं बहुत सारे. तो like you have to understand कि पूरे ऐप में कहाँ पे क्या क्या हो रहा है. Why not they have put a option in profile, but वहाँ पे क्यों वाला option. मतलब कहाँ पे डालना है आपको, वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए. एंड फिर कैसे डालना है, लाइक डिज़ाइनर रहता है तो फॉन्ट वॉन्ट रहता है, बहुत चीज़ें होती है डिज़ाइनर के साथ. मतलब ऐसे डिटेल नहीं जाऊँगा मैं, बट लाइक डिज़ाइनर और पीएम को साथ में काम करना पड़ता है. एंड डेट फाइनलाइज द यूआई, एंड फिर पीएम लिखता है रिक्वायरमेंट डॉक बनता है, फिर उसमें एवरीथिंग लिखा होता है कि ये क्या टैग की होगा, फिर डिज़ाइन लिखा होता है, फिर मेजरमेंट्स क्या होता है, मेजरमेंट मतलब सॉरी एनालिटिक्स क्या होता है, लाइक व्हाट शुड वी मेजर. लाइक अगर कोई ऐप है तो कितने बार कोई स्टोरी देख रहा है, अगर एग्जाम्पल लॉट ऑफ थिंग्स आर मेजर्ड. Data is there. Now that requirement doc is given to the developer, and developer and like PM साथ में बात करता है. like PM समझाता है डेवलपर को कि डेवलपर को PM बोलता है कि देखो ये बनाना है, कोई डाउट है आपको, तो PM डेवलपर पूरा पढ़ता है डॉक एंड फिर डिज़ाइन देखता है. फिर डेवलपर PM को बोल सकता है कि थोड़ा मुश्किल है ये वाला पार्ट, कैन वी चेंज दिस, और ये वाला थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं इसको, बिकॉज डेवलपर ऑल्सो नो लॉट ऑफ थिंग ना. एंड लाइक पूरे प्रोसेस में PM एंड बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं. एंड फिर एक मीटिंग भी होती है पूरे फीचर टीम की, डिज़ाइनर, डेवलपर, पीएम सब साथ में आते हैं एंड डिस्कस करते हैं कि हाउ मच टाइम इट कैन टेक, लॉट ऑफ थिंग्स हैपन. डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होता है. लाइक बड़े कंपनीज में अलग हो सकता है, या छोटे कंपनीज में अलग हो सकता है. बट बेसिक ये होता है कि पीएम, डिज़ाइन, एनालिस्ट और डेवलपर साथ में काम करते हैं टू बिल्ड अ फीचर. एंड वो फीचर का सक्सेस फिर सबके ऊपर होता है, मतलब कि सबको अपना अपना काम करना पड़ता है. एंड पीएम हैज टू लाइक ब्रिंग द होल थिंग टुगेदर. द पीएम अंडरस्टैंड द बिजनेस, दे अंडरस्टैंड मार्केटिंग, डिज़ाइन, टेक, एंड लाइक एवरीथिंग. दे ऑल्सो लाइक यू हैव टू मैनेज पीपल ऑल्सो, बिकॉज डेडलाइंस आर ऑल्सो देयर. लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी होती है एक चीज़. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, प्रोडक्ट मैनेजर हो गया, प्रोग्राम मैनेजर हो गया. सो बहुत चीज़ हो जाती है इसमें, और कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा. मुझे भी पहले क्लियर नहीं था, पहले जब मैं लाइक आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर पीएम. बट लाइक प्रोडक्ट मैनेजर उसमें इतना फ़र्क नहीं है. यू कैन जस्ट सी द जॉब डिस्क्रिप्शन जो देते हैं वो लोग,
एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट अप्लाइंग। एंड किसी को अगर पीएम में जाना है तो अभी अगर आपको कोई आइडिया नहीं कैसे करना है, तो वन थिंग इज यू कैन स्टार्ट कोल्ड मेलिंग, बट उसके आपका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए। तो प्रोफाइल अगर अच्छा है देन यू कैन जस्ट स्टार्ट मेलिंग रैंडम पीपल। बट अगर आपको लगता है कि प्रोफाइल अच्छा नहीं है, मेरे पास प्रोजेक्ट्स नहीं है, इनफ एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास, देन यू कैन जॉइन अ कोहोर्ट बेस्ड कोर्स। बहुत सारे कोर्स होते हैं, मतलब एनी थिंग, मतलब पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, बट प्रोडक्ट फोक्स का एक फ्री वाला कोर्स है जो मैंने किया था, तो वो अच्छा है। नहीं तो बहुत सारे कोर्स होते हैं मेरे जो बाकी जो पीएम हैं ऑफिस में, दे ऑल्सो लाइक डिड सम कोर्स, लाइक किसी ने कुछ और किया, किसी ने कुछ और किया है, बट किसी ने कुछ तो कोड बेस्ड कोर्स किया ही है, चाहे वो डिज़ाइन का हो चाहे पीएम का हो। एंड उसके बाद लाइक उस कोड के एंड में देर इज़ लाइक रिक्रूटमेंट्स होते हैं, फिर प्लेसमेंट जैसे होता है, लाइक उसमें कंपनीज आती है, इंटरव्यू लेती है, आपके पास प्रोजेक्ट्स है तो बता दो, एंड इंटरव्यूज होते हैं। मतलब डिटेल में यू कैन जस्ट सी ऑन यूट्यूब हाउ पीएम्स आर हायर्ड वगैरह वगैरह। So, hey, recently one of your reel on VIT went viral. So, तो आपको अभी कैसा लग रहा है? How did you shoot? And लोगों का क्या रिएक्शन था? क्या रिस्पॉन्स रहा? सब कुछ। हाँ, तो जब मैं था ऑफिस में ही, मैं लाइक आई वाज रीडिंग अबाउट वायरलिटी एंड हाउ थिंग्स बिकम वायरल एंड हाउ प्रोडक्ट्स ग्रो। जैसे फेसबुक था ना, फेसबुक कैसे एकदम से ग्रो हो गया ना, तो उसके बारे में पढ़ रहा था, एंड लाइक व्हाट फैक्टर्स लीड टू वायरलिटी। तो एंड मुझे फिर इंटरेस्ट आया, एंड मैंने देखा कि रील्स बहुत ग्रो हो रहे थे, कंटेंट बनाना। तो मुझे लाइक आई यूज्ड टू मेक यूट्यूब वीडियोस इन 8th 9th स्टैंडर्ड, बट फिर 10th के बाद थोड़ा कम हो गया बिकॉज ऑफ प्रिपेयरिंग जेई। एंड फिर कॉलेज में आके मैंने सोचा था बनाने का, बट फिर इतना मोटिवेशन नहीं रहा। बट फिर अभी जाके मैंने वापस चालू किया है बनाना, लाइक कंटेंट यूट्यूब पे, एंड व्लॉगिंग करने चालू किया मैंने भी कैंपस पे। बेसिक मतलब ऐसा कुछ कुछ बहुत मज़ा, मतलब कुछ नया नहीं करता था मैं, बस नॉर्मल डेली लाइफ को व्लॉग करता था, जैसे कि दोस्त के साथ लाइब्रेरी जा रहा हूँ मैं, या फिर लंच करने जा रहा हूँ, तो उसका व्लॉग बना दिया, फिर यूट्यूब पे डाल दिया। एंड फिर यूट्यूब के वीडियोस को मैंने रील्स बनाना चालू किया। देन आई सॉ कि रील्स से बहुत ज़्यादा रीच आ रही है, लाइक 4000 5000 व्यूज़ आ रहे हैं, एंड यूट्यूब पे लाइक बस 100 200 व्यूज़ ही आ रहे हैं। देन एंड रील्स बनाना थोड़ा ईजी भी था मेरे लिए, बिकॉज एडिट एंड शूट ऑन फोन ओनली। यूट्यूब पे थोड़ा टाइम लगता है, लाइक बड़े बड़े वीडियोस बनाने पड़ते हैं, 5 8 10 मिनट के वीडियो बनाने पड़ते हैं। रील्स में या यू कैन मेक लाइक 1 मिनट वीडियो, बट हाँ, रील्स में भी अलग चीज़ होती है, यूट्यूब पे अलग चीज़ होती है। एंड तो मैंने फिर यूट्यूब पर रील्स बनाना चालू किया धीरे धीरे, बट यूट्यूब पे ना अभी के लिए थोड़ा पॉज कर दिया। मैंने 8 10 वीडियो बनाए थे यूट्यूब पे, विच लाइक व्लॉग्स ओनली, बैंगलोर के थे थोड़े, थोड़े वीआईटी के थे, मतलब ऐसे ही थे वीडियोस। एंड वो वीडियोस हो गए। एंड फिर अभी मैंने रील्स जो बना रहा हूँ उसमें लाइक स्टार्टिंग में भी ब्लॉग ही थे, लाइक अभी मैंने बनाया था मिड टर्म्स एग्जाम थे, तो एग्जाम का ब्लॉग बना दिया था। उसमें मतलब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है, बट लाइक बैकग्राउंड म्यूजिक है, एंड देन चल रहा हूँ मैं, क्लास आ रहा हूँ, एग्जाम का थोड़ा रिकॉर्डिंग डाल दिया, तो उसमें लाइक मज़ा आता है। एंड अभी भी मैं भी सीख रहा हूँ जाना। बट तूने कहा ना एक वीडियो जो वायरल हुआ था, तो वो मैंने देखा था, लाइक किसी ने तो बनाया था थोड़ा बहुत ऐसा सिमिलर वीडियो बनाया था, तो हम लोग ने उससे इंस्पायर होकर फिर कैंपस में किया। सो वीडियो था कि टेकिंग पिक्चर्स विद रैंडम पीपल। तो स्टार्टिंग में तो मतलब मैंने अपने साथ दोस्तों को बोला 8 10 लोगों की, चलो करते हैं, ट्राई करते हैं, ये मस्त फ़नी लग रहा है, लेट्स ट्राई। मतलब इसके पहले आई यूज्ड टू जस्ट मेक व्लॉग्स एंड ऐसे सब वीडियोस, बट ब्लॉग्स पे क्या है कि थोड़ा रीच मिनिमम होती है, लाइक इट इज़ नॉट वेरी वायरल कंटेंट। मतलब जैसे तूने देखा होगा कि नॉट लाइक वायरलिटी कैसे आती है कि जैसे मैंने देखा रील एंड आई विल शेयर यू द रील, एंड यू वॉच इट, यू विल शेयर योर फ्रेंड, तो ऐसे करके वायरल होता है वीडियोज़ ना ऑब्वियसली। तो फिर कुछ फ़नी होता है या फिर कुछ बहुत मतलब बहुत नया सा होता है, तभी लोग शेयर करते हैं। तो फिर हमने सोचा कि लेट्स ट्राई दिस, बिकॉज टेकिंग पिक्चर्स विद रैंडम पीपल इज लाइक फनी, एंड मतलब इट्स लाइक समथिंग न्यू कैंप, मतलब बहुत कुछ किसी ने नहीं ट्राई किया था। एंड तो हमने फिर 8 10 लोग गए, सबने ब्लैक शर्ट पहना था, एंड फिर जाके रिकॉर्ड किया। स्टार्टिंग में थोड़ा ऑकवर्ड सा हो गया था, बट फिर 4 5 करने के बाद वी गॉट इन द फ्लो, एंड फिर करते रहे 20 30 लोग का हमने कर दिया। एंड फिर एडिट कर किया मैंने, एंड म्यूजिक डाला, एंड अभी मतलब यू कैन जस्ट सी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक तो भेज देगा, बट लाइक उस पर 91 के व्यूज़ हो गए अब। मैं थोड़ा टाइम पहले देखा तो 80 थे, लाइक अभी भी ग्रो हो रहा है वो, लाइक 3 4 हफ्ते हो गए डाले हुए, 3 4 हफ्तों में 90 के व्यूज़ आ गए उस पर, तो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है। बट हाँ, मतलब मज़ा आया बनाने में। एंड उसके बाद फिर मैंने ऐसे और वीडियोज़ बनाए, ऐसे मैंने अभी रिसेंटली बनाए थे एक प्लेइंग लाइक सेलिब्रेटिंग राखी रैंडम पीपल, तो उसमें वो भी फ़नी था बहुत कि हम लोग राखी रैंडम लोगों को राखी बांध रहे हैं। एंड फिर बीच में और थोड़े फ़नी थे रील्स थे, बट ऐसे वाले वीडियोस में मज़ा आ रहा है, लाइक पब्लिक प्रैंक्स होता है ना। तो ऐसे आज ही मैंने एक रिकॉर्ड करा था ईटिंग रैंडम पीपल्स फूड, तो वो थोड़ी देर में एडिट करके रिलीज़ करूँगा। बट इसमें भी बहुत फ़नी था, जैसे हम लोग किसी का खाना दे रहे हैं, चिप्स का पैकेट खरीदे तो वो ऐसे हटा रहा है, तो लाइक बहुत फ़नी था। बट हाँ,
मतलब मज़ा आया, बट हाँ थोड़े दिन की कॉलेज लाइफ है ना, इसलिए फिर हम लोग देखते जितना भी कर सकते हैं उतना करूँगा। अभी 1-2 हफ्ते में तो ख़त्म हो गई कॉलेज, उसके बाद फिर वीआईटी रील्स ख़त्म, अभी फिर बैंगलोर रील्स बनाऊँगा मैं। बट हाँ कंटेंट क्रिएशन मज़ा आ रहा है। तुझे कैसा लगता है, लाइक ये यूट्यूब बना वीडियोज़ बना के कैसा लग रहा है? एक अच्छा लगता है, लाइक अगर लोगों को कुछ सीखने को मिलता है, लाइक अगर एंटरटेनमेंट मिल रहा है या फिर कुछ नॉलेज मिलती है, तो एक अच्छा सा लगता है कि यार ये तो चलो अच्छा है। हाँ, मतलब जैसे कि कोई आपका वीडियो देखता है फिर बोलता है कि मैंने देखा था वीडियो, अच्छा लगता है ना। हाँ, जैसे लाइक मतलब मैं जा रहा था अभी मैं कहीं से कहीं जा रहा था, मेरे को रास्ते में मेरे एक वीडियो की आवाज़ आई, लाइक गाने की आवाज़ आई, तो मैंने मुड़ के देखा कि क्या होता मेरा रील हो सकता है। तो मैंने देखा कि वो बच्चा मेरा रील देख रहा था, फिर मैंने उसको बोला कैसा लग रहा है रील, तो उसने बोला अच्छा अरे यू आर दैट पर्सन ना। जैसे बहुत लोग मुझे आइडेंटिफाई अलग कर ही feel रहती है हाँ वो तो। मतलब वो मज़ा आता है कि लोग, जैसे कि मैंने कहा था ना ऐप, जैसे मैंने जो ऐप पे काम किया वो कोई आपका ऐप यूज़ कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है तो मज़ा आता है। सेम सेम फीलिंग है कि आपने कोई वीडियो बनाया, लोग देख रहे हैं, उसको मज़ा आ रहा है, उन लोगों को, लोग शेयर कर रहे हैं दोस्तों के साथ एंड बोल रहे हैं भाई क्या मस्त वीडियो बनाई है, तो मतलब मज़ा आता है वो सब में ही। उससे मोटिवेशन मिलता रहता है धीरे धीरे। एंड सीखने को तो मिलता ही है, लाइक जो एडिटिंग है एंड फिर क्रिएटिविटी भी थोड़ी रहती है एंड प्रोडक्टिव, मतलब जैसे कि आप हर दिन डालते रहते हो, हर हफ्ते एक वीडियो या फिर हर दो तीन, हाँ मतलब 2-3 दिन बाद एक वीडियो डालते रहते हो, तो मतलब थोड़ा प्रोडक्टिव भी रहता है। बट कभी कभी है ना, मतलब बेसिकली मुझे तो मतलब मज़ा आ रहा है कि लोगों को मज़ा आ रहा है वीडियो देखने में, एंड आई गेस आप लोग को भी ये वीडियो देखने में मज़ा ही आ रहा होगा। तो आई गेस एंड करते हैं इसको फिर। That's it for this video, guys. I hope you liked and मज़ा आया होगा, सीखने को मिला होगा, because I learned a lot. And if you really enjoyed तो like करना मत भूलना and subscribe ज़रूर करना, because I'm again saying I'm very close to reaching 100 subs. तो subscribe करना मत भूलना and बस इतना ही। Let's meet in my next video. Bye.